Hi, I'm Burqa Dutt reporting from Al Jazeera TV. This edition of World Events, Sports and Politics and News around the world. I'm here today at the 251st UN Conference, and here I am going to interview some of the world leaders. Let's see who we get first. Aha, here we go, Tush. Mr. Tush, good afternoon, and how are you doing today? Hello. So where are you coming from? Hey, I've been traveling from Iraq. I've been making a lot of international visits in this last week. Hey, heel Tony. Sorry, what was I saying? Yeah, where are you coming from? 3 international visits. Can you imagine 3 in these days? In the last 10 days, I've been to 3 international countries. So you've been having the time to travel. So where are you coming from last? 3 countries I said. One was Alaska, the second was Mexico, and then the third, what was that? Daddy said something. Greece. That was the third, Bomb Iraq. So this is the first time you've been to Greece, and have you seen the Acropolis? Do you have any comments about that? Acropolis? I went to a lot of clubs, frankly, I don't remember all their names, you know. What? He doesn't know what it is. Okay, Mr. Bush, what do your intelligence reports now say on Iran? Can we have an update on that? Intelligence? You see, intelligence reports doesn't need to mean that those guys have to be intelligent. I mean, does everyone have to be a Norma Einstein, for heaven's sake? What was that guy, Norma Einstein? No, we don't need Norma Einsteins here. Our intelligence reports are great, and they say, bomb Iraq. Iraq ko marna hai. Mujhe bomb felne ka hai. Mujhe Iraq ko bomb karne ka hai ne. And what is the stance of the allies now? Is all our allies are very faithful. Tony, here. Tony. Our allies are very faithful, guys. We are one today. Yes, Sam, Uncle. Let me take you on. Let's see who else we can get who looks sort of impressive. Here we have the man himself. Good afternoon, Mr. Hussain. How are you doing? Good afternoon. I'm excellent. I'm really enjoying the conference. And what are your views now on the current situation with Iran? I'm a lover of peace. I love nature. What I need is just peace for the globe, and that's what I'm fighting for from the last 5 years. But I do not able to understand why Bush doesn't understand. What I need is just peace. A piece of Sudan, a piece of Turkey, a piece of Kuwait, a piece of Sudan, and I just need peace, nothing else. Okay, so you're basically saying you need pieces of various countries around. No, That's your definition of I'm peace. just talking about the peace, nothing else but world peace. Oh, about world peace. World pieces of land around you, or world peace? World peace are pieces of every part of my countries which are nearby me, just peace. All right. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Hussain. All right, now who else do we have here now? Who else do you think we can interview here? Hello, Mr. King, how are you doing? Fine. Also be noting a piece of the action. But So nobody looks at me. Why do you think you're missing the action? Nobody looks at me. I have a bomb. I have nuclear weapons. I will bomb Seoul tomorrow. Have what? Are you saying that the United States of America is not paying attention to your demand? I will bomb everybody. I have a bomb. I have a bomb. Well, it seems to be a fair amount of action here. No neutral parties and no sort of peace-loving people. Let's look around and see if we can find anybody else here. Here we have the Indian Prime Minister, Mr. Vajpayee. Mr. Vajpayee, how are you doing today? And what are your views? What are your views on the current political situation? As I've been thinking, we have terrorism. I have written a poetry on Iraq. Well, that's somebody willing to write poetry and give peace a chance. We'll now take a commercial break here and we'll be back shortly. Please don't go away. We'll be back with the latest update on the cricket news. Hi everybody, I'm back again. This is Burqa Dutt, now taking you to the SexMax studios for the latest edition on the sports events for today. For the sports event and especially cricket. World Cup cricket commentaries. Here is the SexMax team and I hand it over to them. To Mandira, who will now take you on forward. Hi. Welcome to SexMax. I have here Sidhu and Srikanth, and what a great performance. Did you see the way Zaheer Khan appealed yesterday? Oh, I tell you, India has great assets, really. Srikanth, what do you think of the performance yesterday? Oh, absolutely brilliant. You know, India, when they play, they can beat any team any day. And regardless of the outcome, they can beat any team any day. India is such a team.
But that was always true. Don't you think Dravid is sexy? Really sexy? Dravid. Yes. Sorry, I think we're digressing. But all of us South Indians, we are. Sidhu, why don't you tell us? What did you think? Do you think the boys are doing fine? What do you think? Just a couple of observations. Did you notice the ball today morning when we started off? The shine ball? It's as red as Mandira's face, blushing. Thanks. And Tendulkar's play. And when he hits the ball, it stays hit. He just goes hammer and tongs. It's just an amazing story. Men in blue. I don't know. Tendulkar's batting, it gives me the goose pimples every time I see them for so long now. Oh, and what about the captain? Srikanth, you had said so many things about Saurav. You said he should be number 14. He has just proved you wrong, isn't it? Number 14, number 3, how does it matter? It's all in the numbers. I mean, who cares about numbers? Finally, it's the outcome that matters. Ganguly can come number 14, come number 4. He can play 6 guys on the onside and 8 on the off. It's irrelevant. And the way the Kiwis reacted when Bond performed? I mean, all the yields fell. I mean, that's craziness. I know, the Kiwi Bond really rallied. Well, Sidhu, do you think there's anything more you would like to say about the way that the Indians are going about their games, the way their body language is? Body language? Yeah. It's just the huddle and the cuddle that happens on the field. Oh. I think they've got it. The men in blue, they're just doing it. I really would like to cuddle them, really. I think that's it we have today from our team in Sex Max. Well, that was the roundup of the sports events today, and good night and goodbye to all of you from Team Satyabaz. Satyabaz is the best. रात है, कराची और लाहौर में मातम का माहौल छाया हुआ है, और हो भी क्यों नहीं। आज पाकिस्तान की भारत के हाथों बहुत करारी हार हुई है। एक मैच बाकी है और पाकिस्तान का सुपर 6 में आना बहुत ही डाउट में पड़ गया है। बार बार वही वीडियो क्लिप पाकिस्तान की टीम देख रही है और अपने निकम्मेपन को कोस रही है। इस मीटिंग में मौजूद हैं वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इंजी आलू, सईद अनवर और कप्तान वकार यूनिस। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं वो रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिनकी आज ट्रेन पूरी तरह से डिरेल हो गई। इंशाअल्लाह मुझे दुनिया के सारे लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। मैंने दुनिया के हर मैच में अच्छे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा लिए। तेंदुलकर को पिछली बॉलिंग में पहली बॉल पे 3 विकेट जमीन पे गिरा दिए, और आज इंशाअल्लाह आज तो लगता है मेरा दिन ही नहीं था। पहली बॉल और तेंदुलकर ने आके ऐसी शॉट्स मारना शुरू की कि वकार भाई, मुझे आप जैसे सीनियर प्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। था कि आप मुझे आके सपोर्ट करेंगे। मैंने सोचा था आप मुझे आके बोलेंगे कि तू इसी लाइन को मेंटेन कर, क्योंकि इसी लाइन पे ये आउट होने वाला है। लेकिन आप आए और आपने मुझे फोर्स किया कि नहीं, अभी तो लाइन चेंज कर। वकार भाई, आप जैसे सीनियर प्लेयर से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। संभाल अपने आप को। पहला ओवर करता है, 19 रन देता है तेंदुलकर के सामने और सोचता है कि मैं तेरे को बोल कराता रहूंगा। 15 मिनट में और तुम बोल करते तो पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ हमारा मैच खत्म था। वकार भाई, आप कप्तान हो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन आपने भी अपनी जिंदगी में इतने ओवर फेंके हैं, आपने भी कभी ना कभी तो 20 रन दिया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आके मुझे पहले ओवर के बाद ही हटा दें। इसका मतलब ये कि आपने मेरा मजाक उड़ा दिया है। मैंने बॉल आके 100 माइल से ऊपर फेंकी। तेंदुलकर के तीनों स्टंप में अगले ओवर में जरूर उड़ा देता, पर आपने हटा डाला। आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा है। अरे मुझे जरूर पता, आप लोग क्या बकबक करते हैं?
सईद भाई मैंने इतना रन बना के दिए थे तुम लोगों को और इतना बेकार बॉलिंग किए कि वो साले सचिन के औलाद ने बाहर मार के निकालते हैं आप लोगों को। लेकिन सईद भाई आपने हमें रन आउट किया था। और वो जो 500 विकेट जो मैंने लिए उसका कोई फायदा नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में। और वो अब्दुल को देखो, किसका कैच छोड़ता है? सचिन का कैच छोड़ता है। मैच तो वही हार गए थे। वासीम भाई हम पहले ही बोले थे उसके टीम में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आपने ही वकार भाई को बोला था उसे रखने के लिए, एकदम अच्छा नहीं लगा। तो क्या करना चाहिए था? तुमको वाइस कप्तान बनाया था और तुमने क्या किया है? पूरे टूर्नामेंट में कुल मिला के 16 रन बनाए हैं। 38 बार रन हुए। उसको क्या फर्क पड़ता है? छोटी बड़ी बात, छोटी तो बड़ी बात। अभी देखिए आपने हमें वाइस कैप्टन बनाया, रन नहीं बनाए, ठीक है, पर आप ऐसे ज्यादातर लोग तो कप्तान बने हो, फिर भी क्या हुआ? एक तो था हमारा, अरे तुमको क्या फिक्र है? कप्तान के पीछे पड़े हो, कप्तान तो बन जाते हैं ना आपको। जब तक होगा समोसे में आलू तब तक रन बनाएगा ये भालू। रन बनाएगा भालू कुछ और बनाएगा। 38 बार तुम रन आउट हो चुके हो, तब भी तुमने अपनी परफॉर्मेंस बनाई है। रिकॉर्ड बनाते हो तो रन आउट होने का, गेम खेलते हो तो। इंजी भाई मुझे फिर मैं दिखाऊंगा। इंजी भाई मेरा वजन आपसे बहुत कम है, मैं आपसे बहुत तेज भागता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि आपने जरूर पैसा खाया है, क्योंकि आप ऐसे क्रूशियल मैच के अंदर रन आउट हो गए और मुझे तो लगा कि आपको सईद भाई ने बुलाया भी नहीं था, आप जानबूझ के वहां भागे ताकि आपको वो क्या नाम है उसका सहवाग, जो कि खुद बहुत छक्के मारता है, आके आपको रन आउट कर दे। आपने जरूर पैसा खाया है। पैसा तो साले हम सब ने खाया, कितनी बार खाया? एक बार नहीं, कई बार खाया। भारत के सामने अरे मेरे को सामने मैं पैसा नहीं खाता इंशाअल्लाह। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो सब लोग। अभी मुझे खबर लगी है कि जावेद भाई गए हैं वजीर आजम के पास और कल उनकी उनसे मीटिंग हुई है। हाँ, और ये जो हार हमें पड़ी है ये इतनी आसानी से बचने वाली नहीं है। लेकिन दाऊद भाई क्या करें? अरे यार चुप यार, सुन तो सही। पहले जाके देखे तो सही कल बातचीत क्या होती है। शाम को 5 बजे एक टीम मीटिंग है होटल में, और देखेंगे वहाँ पे, मतलब हम लोग तो होंगे, जिसको और बुलाना उनको बुला लेंगे और उस मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। बीवियों को क्यों ले आए? ये इंडियन टीम जो है बिना बीवी के आए और सारे छक्के मारे, हम सब बीवी के संग आए और सारे विकेट गिर गए हमारे। अब तो कभी बीवी को कोसो, कभी तो प्लेयर्स को कोसो, अब कप्तान हमें बनाना चाहिए। अब जनरल मुशर्रफ आकर क्रिकेट ग्राउंड में खेलेंगे क्या हमारे साथ भारत में? चलो कल की वेट करते हैं और क्या करें। मकार भाई ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड लेके आपको नहीं जाना चाहिए। आपको पता है मैच के बाद मेरी बीवी ने मुझे फोन किया कि तुम और जब आओगे तो बुर्का पहन के आना, उसके बिना नहीं आना। किसी तो बुर्के वाला किया तुमने। 100 मील पे गेंद फेंकने से क्या होता है जब तुम्हारी गेंद छक्के पे बज रहे थे तुम्हारी गेंद पर। शोएब भाई ये सही है, कल मीटिंग के बाद बात करेंगे। बुर्का ही पहनो सब। और मुझे ये फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता। ये सवेरे सवेरे फुटबॉल खेलने को रहते हैं, क्रिकेट में। अच्छा अब तुम लोग सब यही क्लिप बार देखने वाले हो या इसके बारे में जरा ठंडे दिमाग से बाद में बात करें? और ये ड्रामे का आदमी है, कल बात करेंगे। कल बात करेंगे। चलो देखते हैं कल वजीर आज़म क्या बोलते हैं। कल बात करेंगे। तुमसे उम्र में मैं सबसे बड़ा हूँ, बात मानो मेरी, कल बात करेंगे। वसीम भाई मान लेता हूँ इंशाअल्लाह। उधर इस्लामाबाद में जावेद मियांदाद वजीर आजम जनरल परवेज मुशर्रफ के घर जाते हैं इस उम्मीद में कि फिर से पाकिस्तान टीम को कोच करने का एक मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जावेद मियांदाद जनरल मुशर्रफ के घर में तशरीफ लेने घुसते हैं। सलाम सत्री साहब, मुझे वज़ीर आला से मुलाकात करनी है, मेरा उनसे अपॉइंटमेंट है। शुक्रिया शुक्रिया। हुजूर, जावेद मियांदाद साहब आपसे मिलने आए, भेजो। मियांदाद और इस वक्त भेजिए। हुजूर, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। सलाम वालेकुम वज़ीर आला। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये कैसा ना हुआ मियांदाद भाई? मुशर्रफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मुझे मालूम है हम पाकिस्तानियों के जहन में क्रिकेट की कितनी कीमत है, और मुझे मालूम था कि अगर मैंने आपसे वक्त मांगा तो आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बेशक बेशक। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुशर्रफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आपने जो काम किए हैं आज तक पाकिस्तान की
पूरी 40 साल की हिस्ट्री में किसी भी वजीर आला ने ये काम नहीं करके दिखाया। आपने भारत को उनके असली रंग ला के दिखाए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को आपने लाहौर तक बस में दुड़वाया और उसके बाद खाली हाथ वापस भेजकर भारत को उसके रंग दिखलाया। आपकी तो तारीफ जितनी की जाए उतना कम है। उसके बाद आपने अटल बिहारी वाजपेयी को आगरा में लाकर सबके लोगों के सामने उनकी लुंगियां उतरवाई और उन्हीं की प्रेस के सामने आपने वाजपेयी जी की जो हालत की है वो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ है। मियादाद भाई, ये हम सब जानते हैं और सत्ता में हम आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। अब बताइए कि आपके आने का असली मकसद क्या है? मुशर्रफ साहब, आप तो जानते ही हैं, आपने जो पाकिस्तान की प्राइड को आगे बढ़ाया, आज ये हमारे 11 खिलाड़ी, इन्होंने जाकर वो सारी इज्जत इंडिया के हाथ पैसे खा खा कर बेच डाली है। मैं इस बात से इतना परेशान हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी होने के नाते और एक जाबाज क्रिकेटर होने के नाते मुझे कुछ करना चाहिए और इसीलिए मैं आपके पास आकर खड़ा हुआ हूँ। काम तो इस टीम ने बहुत गंदा किया, बहुत शर्मनाक काम किया कि पाकिस्तान ने जो पिछले 14 साल से भारत में रखा हुआ है, आतंक बचा के रखा हुआ है, भारतीय को हिला के रखा हुआ है। हमने बिहारी को हिला दिया, हमने जनरल बुश से दोस्ती की भारत में आतंक फैलाने के लिए, और ये 11 आदमी भारत के सामने हमारी इज्जत को नीलाम करके आ गए। मुझे इस टीम से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं क्रिकेट से कंप्लीटली अपना फेथ मेरा उठ चुका है। मैं नहीं चाहता कि अब क्रिकेट के बारे में कोई बात की जाए मेरे साथ। मुशर्रफ, आप ऐसा कहने लगेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या अंजाम होगा आप ही जान सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप एक्चुअली कुछ स्टेप्स लें। अगर इसके लिए आपको बुश साहब के पास जाना पड़े, इसके लिए आपको दाऊद साहब के पास जाना पड़े, इसके लिए आपको इवन चाइना के पास जाना पड़े, तो आप जरूर जाइए, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा कुछ होने वाला नहीं है। दाऊद साहब के पास जाने के लिए मैं पिछले 6 महीने से लाइन लगा के खड़ा हूँ। जनरल बुश से मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए तो 10 मिनट में मिलती है, दाऊद से अपॉइंटमेंट चाहिए तो 6 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं मिली मुझे। इतना जब उसको हमारी जरूरत थी तो रोज हमारे दरवाजे के बाहर आके खड़ा होता था कि मुशर्रफ साहब मुझे ये करना है, मुशर्रफ साहब मुझे पैसा चाहिए। अब साले के पास सब है तो मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं देता है। मुशर्रफ साहब, छोटे मुंह बड़ी बात, मैं आपको ये पाकिस्तान कैसे चलाना ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि बॉम्ब से बड़ा कोई यहाँ पे तलवार नहीं है। आप अगर बुश साहब से जाके बोलेंगे कि ये दाऊद के ऊपर बॉम्ब गिराएंगे, अगर वो दुबई में बैठा है तो दुबई में बॉम्ब गिराएंगे, बुश साहब की तो इतनी ताकत है वो कुछ भी कर सकते हैं, और आप बुश साहब को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। अगर आपने बोला तो इंशाअल्लाह ये जरूर होगा। मियादाद भाई, आप बोलिए कि आप चाहते क्या हैं। मैं इतना कहता हूं कि अगर एक मैच भारत और हारता है पाकिस्तान के सामने, अगर पाकिस्तान भारत के सामने हारता है तो मैं भारत के 11 खिलाड़ी और उनके एक्स्ट्रा सारे के सारे उड़ा दूंगा। अब मैं हारना नहीं चाहता, ये पाकिस्तान की सरजमीन की बेइज्जती है, हारना नहीं चाहता। मुशर्रफ साहब, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम आज की तारीख में केवल पैसे के बल पे खेल रही है। ये आलू, ये वसीम अकरम, या एक के बाद एक खिलाड़ी सारे आप देखते जाइए, इनको दाऊद ने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। आपको अपनी ताकत के जरिए दाऊद को कहना होगा कि ये टीम को टच ना करे, और अगर पैसा देना है तो जाके उन हिंदुस्तानियों को दे और उनको बोले कि आज के बाद पाकिस्तान को हराने के तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो हमारी तरफ से मिलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो क्रिकेट की साइड में पूरी अपनी ओर से टैकल कर लूंगा। 1 साल का मौका मैं मांगता हूं दाऊद से। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारे कहने के बाद के कारण मैं दाऊद से बात करूंगा और उसको कहूंगा कि सारे के सारे 11 खिलाड़ी भारत के पाकिस्तान के लिए खेलने चाहिए, आज से भारत के लिए नहीं खेलने चाहिए। मैं उनको कहूंगा कि उनको पैसा खिलाओ, जो करना है करो, और अगर और कुछ नहीं तो सारे के सारे उड़ा दो इंशाअल्लाह। एक और आपसे आखिरी गुजारिश मैं करूंगा, आज की तारीख पाकिस्तान के कोच ये गोली चमड़ी वाले हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी, ये 6 महीने पहले केवल ये टीम इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये सब पैसे के बल पे खेल रहे थे। अगर आपने पैसे का इनके ऊपर से पूरा जोर हटा दिया तो मैं, जो कि आखिरी बॉल पे भी छक्का लगा सकता हूँ, इस टीम का फिर से कोच बनने के लिए राजी रहूंगा और देश के लिए और आपके लिए खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। मियादाद, छक्का तो तुमने 10 साल पहले लगाया, के बाद तो तुम खुद छक्के बन के रह गए। और इस तरह जावेद मियादाद को धक्के मार के मुशर्रफ साहब के बंगलों से बाहर निकाल दिया जाता है और उससे उनकी कोच बनने की उम्मीद और पाकिस्तान की फिर से रिवाइवल करने की उम्मीदों पे पूरा पानी फिर जाता है। यहीं खत्म होती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की सागा।
बॉलीवुड हंगामा, भरी दोपहर में दिया तेरे हाथ में, स्टारिंग आसिफ टंडन, चेतन बच्चन, एंड्रू क्रिस्टो, श्रीराम एंड समीर खन्ना। ये कहानी है दो लंगोटिया यारों की, आलू और भालू, जिनका बचपन रामपुर के गांव में बीता। आलू भालू बेटा घर आओ। अभी चले क्या? भूख लग रही है मेरे को। चल चल आलू, कौन मिला है? कौन है? समय बदला, मौसम बदला और दोनों जवान हो गए। लस्सी से बकाड़ी तक पहुंचे। आईएम रामपुर से ग्रेजुएशन करके दोनों की नौकरी अमेरिकन बैंक में लगी, डेट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। अरे क्या दिल, नशे में दूध। क्या डील लगाई यार। आज तो यार खोलते हैं यार। चल देख, मेरे पापा की नई कार है आज मेरे पास। क्या गाड़ी है? चले? चल यार, चल चल चलो जल्दी। अरे क्या गाड़ी है तेरी यार? क्या बढ़िया गाड़ी है तेरी। अरे वाह, चलो। अरे वाह यार, क्या गाड़ी। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत मेरी यार ऐसा अपना प्यार। क्या मजा आ रहा है यार। क्या खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तभी वक्त ने ऐसा मोड़ लिया, दोस्त पिछड़ गए। एक्सीडेंट भी। 6 महीने बीत गए। 6 नहीं 5 महीने बीत गए। लालू अपने दोस्त को ना बुला पाया। बैंक के हमने गाड़ी दी, बोनस दिया, बंगला दिया, शादी हो गई उसकी, लेकिन दोस्त कहां से लाता? बकाड़ी के नशे में डूबा हुआ लालू। कैसे हुआ, कब हुआ, क्या सुनाए? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, सोचो ये न सोचो क्या हुआ। दोस्त कहाँ चला गया यार तू? वो तेरी $4 की डील भी वैसी ही रह गई। साला उसके चलते बोनस भी इतना खराब आया इस साल, क्या बताएं यार। लेकिन वो सब ठीक है दोस्त, धंधा भी आ जाता, डील भी हो जाएगी। लेकिन तू कहाँ चला गया यार? तेरे को कहाँ से लाऊं मेरे दोस्त, तेरे को कहाँ से लाऊं? दोस्त का दुख देख के भालू की आत्मा जाग उठी। उसको याद आ गई वो डील वाले दिन, वो एसवीए, वो रेरॉक वाले दिन। और तभी कुदरत का चमत्कार, आत्मा और शरीर का मिलने हुआ। भालू की आत्मा कचालू के जिस्म में जा बसी। कुछ दिनों बाद एक दिन लालू अमेरिकन बैंक में काम करके थका हारा घर जा रहा था।
इसको क्या होगा? Please, Robert. आलू बेचारा नहीं भालू? हाँ नहीं, तुम नहीं हो सकते भालू। क्यों नहीं? खाओ। अरे तुम्हारा दिल नहीं, मेरा भी दिल नहीं। दोस्त मिल जाए जिस तरह दो ले जिस तरह होना होने वाला रहा। दोस्त तुम कहाँ चले गए थे? वो सब भूल जा, गाड़ी में एक चक्कर मारता है। चल मेरे दोस्त, मैं चलाएगा। चल दोस्त। अरे यार मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और तभी इस बार एक्सीडेंट में लालू की मौत हुई। साला नौकरी लिया, चौकरी भी लिया और अभी भी सीट पर लगा रहता है। और इसी तरह जीने मरने का कारवां चलता ही रहा।